about the Aryans and the age of Rig Veda. Age of Rig Veda. As you all know, IVC के डिवाइस में कुछ लोगों ने बहुत सारे थ्योरीज दिए कि why did the IVC Indus Valley civilization come to an end? Some say that the Aryans attacked, some say that river shifting हो गया था, some say that earthquake आ गया था, some say that कोई ना कोई invasion हुआ था. तो there were several theories. ठीक है? But nobody is able to completely define कि क्या what is the reason for the decline of IVC. After thousands of years, Aryans came into picture. कौन है? Aryans came into picture, and Aryans were actually pastoral community. क्या थे ये? Pastoral community थे, and agriculture इनके लिए क्या था? Secondary activity था. Pastoralist मतलब पता है? जो भेड़ बकरी चराते हैं. They are what? Pastoral community. Okay. Pastoral and agriculture was what? Secondary. Next लिखो, it was a male dominated. तो पेट्रियार्की का मेन रूट्स कहाँ से आ रहा है? यहीं से आ रहा है. ऋग्वेद में फिर भी ठीक था. आफ्टर द ऋग्वेद जो ये लेटर वैदिक पीरियड आया था ना, इसमें हम मेल्स ने कचरा कर दिया पूरा. ऑलराइट. Male dominated and horses became very important. It was the Aryans who brought horses at mass scales. ठीक है? They used it as a mode of transport. काफी लंबे जगह से लंबी जर्नी की इन्होंने, और horses was considered to be a dominant source of transport. In the Rig Veda, prayers were written. ऋग वेद में क्या क्या है? Prayers हैं for Agni, for Indra, for Mitra, for Varuna. वरुण धवन नहीं है, वरुणा. ठीक है? अग्नि, इंद्र, मित्रा एंड वरुणा प्रेयर्स हैं. ओके. ऋग्वेद में स्पेसिफिकली एक रिवर का बहुत ज्यादा मेंशन किया हुआ है, एंड दैट इज द रिवर सरस्वती. एंड इट वाज आल्सो कॉल्ड एज नदी तारना. क्या बोलते थे इसको? नदी तारना. Rigved has mention of this river Saraswati, and it was also called as Nadi Tarna. Do not get confused. IVC में कौन सा रिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट था? The Sindhu river. कौन सी रिवर? सिंधु रिवर. और दी इंडस रिवर. तो इंडस रिवर तो डोमिनेंट था ही, बट सरस्वती was also added. ठीक है? सरस्वती was also added. Indus rivers was dominant. सरस्वती क्यों डोमिनेंट हुआ? Because during the Rigveda period क्या हुआ था? Socketed axes. Axe पता है ना? कुल्हाड़ी. ये बनना शुरू हो गया था. Thus the Aryans started moving inwards in the Indian subcontinent. Remember मैंने बोला था बहुत सारा जंगल था. Yes or no? यहाँ पे बहुत सारा जंगल था. It was from the axes that the Aryans started clearing several areas. And जैसे जैसे वो क्लियर करते गए तो उनको कौन सी रिवर मिली? सरस्वती रिवर. समझ में आया? इसीलिए सरस्वती रिवर वाज आल्सो added. नेक्स्ट लिखो. Aryans considered India to be a land of 7 rivers. इंडिया को क्या कंसिडर करते थे? लैंड ऑफ 7 rivers. That is the सप्त सिंधु. Okay. याद रखना, during the Aryan, the Rigvedic period, there were 2 sets of people, Dasas and Dasyus. Dasas were actually the early Aryans. They were the early Aryans, जो सबसे पहले आए थे. Whereas Dasyus were the original inhabitants. जो पहले से रह रहे थे इंडिया में. समझ में आया? And these Dasyus were very very uncultured या फिर very tribalistic. क्या थे ये? Tribals थे. Whereas Dasas were more sophisticated. They knew how to ride a horse. They had socketed axes. They were very sophisticated. तो क्या हुआ? Dasas and Dasyus के बीच में झगड़ा चालू हो गया. कौन जीतेगा?
दासा जीतेगा ऑब्वियसली. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर व्हाट यू से टूल्स दैट दे हैड विद देम. ऑलराइट, द दासास वन, द दासास वन एंड दे किल्ड और they actually moved the Dasyus out of their place. Dasyus को क्या किया? भगा दिया अपने घर से. तुम लोग जाओ कहीं और रखो, जाके रखो. ऑलराइट, आर्यन चीफ को बोलते थे त्रासा दस्यु. आर्यन चीफ को क्या बोलते थे? त्रासा दस्यु, who overpowered the Dasyus. त्रासा दस्यु ने क्या किया था? He overpowered the किसको? दस्युस को. बाय हाउ? बाय किलिंग देम. इसलिए इनको बोलते हैं दस्यु हत्या. दस्यु हत्या कैसे ओवरपावर किया? बाय किलिंग देम. दस्यु हत्या. समझ में आया? नेक्स्ट, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स लिखो. ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे. वो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या क्या थे? इंद्र. इंद्र का नाम सुना है? इंद्र was also known as Purandara. He was also known as what? Purandara, or the breaker of forts, or the breaker of forts. Forts समझ में आया? Breaker of forts. Alright, Aryans. इसका हेडिंग क्या है? ये ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स लिखो. ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स लिखो. Indra was also known as Purandara. He was the breaker of forts. Aryans, they actually used to drive chariots. Chariots पता ना? Rath. And these chariots were driven by whom? Horses. The Aryans used to wear a specific coats of mail which were called as varmans. ठीक है? आपने कभी देखा है मूवी में, वो बाजीराव मस्तानी में, जब भी कोई फाइट करने जाता है तो they are worn, the warrior is worn with the jacket, बुलेट प्रूफ टाइप का होता है, प्रॉपर एकदम आयरन का जो बना हुआ रहता है. समझ में आ रहा है? These jackets are called as what? The coats of mail और वर्मन, जो प्रोटेक्ट करते थे उनको. और then there were conflict between 5 tribes. पंचजाना. Okay. Now write about the material life. Material life के बारे में लिखते हैं. याद है हम लोगों ने आईवीसी में पढ़ा था एका के बारे में. एका वाज व्हाट? सॉलिड व्हील. ठीक है? पहली बार आर्यंस इंट्रोड्यूस व्हाट? स्पोक्ड व्हील. क्या इंट्रोड्यूस किया इन्होंने? स्पोक्ड व्हील. The Aryans introduced spoked wheel. Agriculture जो था, it increased. Agriculture का share increased. Wars were fought. ठीक है? Wars were fought. Next point. For the sake of cows. गाय को बहुत ज़्यादा precious मानते थे. Wars were fought for the sake of cows और गविष्ठी. Now you understand कि काऊ को sacred क्यों माना जाता है, या फिर काऊ इतनी important क्यों है? Because it was from the ऋग्वेदिक period काऊ को बहुत ज़्यादा pious माना गया. There is a reason. Cow provides us with milk. Yes or no? It provides us with the dung. This dung is very rich in nutrients which can help us in growing crops. उस समय केमिकल फर्टिलाइजर थोड़ी थे. डांग से ही तो क्या बनता था? फर्टिलाइजर बनता था. Yes or no? Okay. And since agriculture इतना dominant नहीं था, they were a pastoralist community, तो milk became a very important product of consumption.
इसलिए काउ का जो प्रोटेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। गवेष्टि, आयास became very dominant। आयास मतलब कॉपर, आयास मतलब कॉपर became very dominant। एंड यहाँ पे पेंटेड ग्रेवेयर आया। कौन सा आया? पेंटेड ग्रेवेयर was introduced। PGW, ये पॉटरी है। दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर। हमने आईवीसी में क्या देखा था? रेड एंड ब्लैक पॉटरी एंड ऑकर पॉटरी। यहाँ पे कौन सा पॉटरी है? पेंटेड ग्रेवेयर। तो इन द लास्ट क्लास वी टॉक्ड अबाउट द मटेरियल लाइफ, एंड उस मटेरियल लाइफ में वी टॉक्ड अबाउट क्या? देयर वाज इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? स्पोक व्हील। स्पोक व्हील इंस्टेड ऑफ द एक का था ना आईवीसी में, व्हिच वाज नथिंग बट सॉलिड व्हील। क्या आ गया? स्पोक व्हील आ गया। नेक्स्ट वी टॉक्ड अबाउट आयास। आयास के बारे में बात की थी। आयास वाज नथिंग बट व्हाट? कॉपर। कॉपर को यूज करके क्या बनाया गया था? यूटेंसिल्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, आयास। एज वेल एज ब्रॉन्ज used to be, bronze materials used to be made, and bronze was nothing but what? Copper plus tin। ठीक है, copper plus tin। Along with that, pottery में क्या आया था? pottery में क्या आया था? painted graveware। Remember, pottery बहुत important, what do you say, reference point है for any civilization, because उस समय we did not have steel utensils, so everybody used to use what? Pottery। If you remember, if you recall, in the Chalcolithic period, we talked about ochre-colored pottery. Yes or no? In the IVC, we talked about red and black pottery. But in the Rigvedic period, हम किसकी बात कर रहे हैं? Painted grey-ware। समझ में आया? Painted grey-ware का ध्यान रखना है। And this, as we move on, we will find that इसको और refine किया गया in the Mauryan period, in the Gupta period. Understood? Okay, tribal polity के बारे में लिखते हैं। Let's talk about tribal polity. As I have already discussed अभी, tribal polity क्या था mostly? देखो, there used to be a tribal chief. There used to be a tribal chief who was also called as Rajan. क्या बोलते थे उनको? Rajan. Who was nothing but the protector of the tribe. The protector of the tribe. बहुत बढ़िया। ठीक है? याद रखना, ड्यूरिंग दैट टाइम राजन डिड नॉट हैव अनलिमिटेड पावर। यस और नो? अनलिमिटेड पावर नहीं था, एंड द डिसीजंस वर डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी। ठीक है, एंड द राजन यूज्ड टू बी व्हाट? इलेक्टेड। ध्यान रखना, इलेक्टेड बाय द ट्राइबल असेंबली। इलेक्टेड बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल्ड एज द समिति। कौन इलेक्ट करते थे? दी समिति, which was the tribal assembly। Okay, the clan was based on, और राजन के साथ जो जितने भी लोग रहते थे उसको बोलते थे clan। It was based on assemblies called as the सभा और समिति और विधाता और गणा। समझ में आया? Sabha, Samiti, Vidata, Gana were all nothing but a group of people, right? And in that group, women used to play a very dominant role or an equal role. Women were given what? A dominant or equal role. They participated. तो दिक्कत क्या हुई यार? फिर ये changes कैसे आने शुरू हुए? Like, why do you think in our society patriarchy is a problem? Everybody knows about patriarchy? क्या होता है patriarchy? Where the man dominates, yes or no? All the decisions are taken by God. Whom? The men. Whereas women का significance, women के contributions are always considered to be what? Secondary. Yes or no? तो यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा था, यहाँ पे तो women were participating। तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत हुई later, when men considered themselves. Some men became greedy. Some men became what? Greedy, and they wanted the power to be in their hands. ठीक है? They wanted to be power in their hands, and slowly and steadily, systematically उन्होंने क्या किया? Women को subdue करना शुरू किया। Child marriages became dominant. Education of the women was not focused upon। Clear है? धीरे धीरे क्या हुआ?
as women's literacy levels went down, as women's, what do you say, agency मतलब their decision making power went down, they became very submissive. And उसी conditions के वजह से men used to overpower females. ठीक है, men used to overpower females, and the sad reality is that कि आज की डेट में भी even in our society patriarchy is still present and men are proud of it. ठीक है, that's the sad reality. Alright, अब अगर मैं बात करूं तो किंग के साथ there used to be a priestly class. Obviously priestly class तो होना ही पड़ेगा. The priestly class was called as पुरोहिता. क्या बोलते थे? पुरोहिता. There were two important purohits or well-read individuals. आप लोगों ने शायद उनका नाम सुना होगा. One was गुरु वशिष्ठ. सुना हुआ है नाम? गुरु वशिष्ठ. And the other was गुरु विश्वामित्रा. विश्वामित्रा सुना हुआ है? Alright. वशिष्ठ जो है वो क्या थे? Conservative थे. They were what? Conservative. Whereas Vishwamitra was more liberal in nature. क्या थे ये? Liberal in nature. If you have heard कभी तो गायत्री मंत्र. Have you heard about गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र जो है, it was actually composed by whom? गुरु विश्वामित्र. ओम भूर्भुवः स्वः जो सुना होगा आपने कभी कभी. It is composed by whom? गुरु विश्वामित्र. Alright. Then ध्यान रखना, हमने क्या क्या देखा? राजन, हाँ, उसके बाद हमने सभा समिति देखा, फिर हमने पुरोहित देखा. नेक्स्ट इन लाइन इज द सेनानी. नेक्स्ट इन लाइन क्या है? द सेनानी, दैट इज द आर्मी. नेक्स्ट इन लाइन इज द सेनानी और द आर्मी. वन थिंग टू नोट इज द सेनानी वर नॉट परमानेंट. समझ में आ रहा है? दे वर नॉट परमानेंट, रादर दे वर व्हाट? टेम्पररी इन नेचर. दे वर टेम्पररी इन नेचर. जब जरूरत पड़े, व्हेन फंडामेंटल ड्यूटी याद है ना अपने को, व्हेन द नेशन वांट्स आवर कंट्रीब्यूशन टू डिफेंड इट्स बॉर्डर्स, तब क्या करेंगे? एवरीबॉडी विल टेक अप आर्म्स. तो सेनानी का मतलब है इट वाज वेरी टेम्पररी इन नेचर. टेम्पररी इन नेचर. क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इज देयर वाज प्रेजेंस ऑफ नो टैक्स ऑफिशियल्स. टैक्स ऑफिशियल्स वर नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द वैदिक एज. टैक्स ऑफिशियल्स नहीं थे इस समय. नो टैक्स ऑफिशियल्स. बताओ, अभी टैक्स टेररिज्म की बात करते हैं, उस समय टैक्स ऑफिशियल्स ही नहीं थे. ऑलराइट, बट वॉलंटरी बलीज और ऑफरिंग्स वर गिवन. क्या दिया जाता था? वॉलंटरी बली. बलि पता ना? एंड ऑफरिंग्स वर गिवन टू द किंग, टू द राजन और टू द पुरोहित. ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर वर नो प्रेजेंस ऑफ एनी जुडिशियल ऑफिसर. जुडिशियल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं थे. ये लिख लिया? नो टैक्स ऑफिशियल्स है एंड वॉलंटरी क्या होता था? बलि एंड ऑफरिंग्स होता था. नेक्स्ट लिखो, नो जुडिशियल ऑफिसर. नो जुडिशियल ऑफिसर, but rather most of the cases were decided by whom? The Rajan, the Sabha as well as the Samiti. सब लोग मिलके डिसाइड करते थे. ठीक है? There was theft of cows. याद है आप लोगों को मैंने कल बोला था गैवेस्टी के बारे में? तो काउस की चोरी होती थी. Cows were considered to be what? A very precious property. गायों की चोरी होती थी. Theft of cows. And इसी को कर्ब करने के लिए there was a system of spies. There was a system of spies. ठीक है? 007 जेम्स बॉन्ड. ऑलराइट. वज्रपति. नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट. वज्रपति. वज्रपति, that is VRAJAPATI. Vajrapati was an individual who was actually the head of families. Who was what? The head of. He actually led the head of families. मतलब घर के जितने भी एल्डर्स थे उनको कौन लीड करता था? वज्रपति लीड करता था. वज्रपति लिखो, led the head of families. Led, LED, led the head of families. All right.
फिर लिखो ट्राइब एंड फैमिली में. नाउ राइट डाउन ट्राइब एंड फैमिली. यहाँ तक समझ में आया ना सबको? एवरीवन ट्राइब एंड फैमिली लिखो. नेक्स्ट हेडिंग ट्राइब एंड फैमिली में क्या लिखोगे? द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, द लॉयल्टी ऑफ द पीपल belonged to the tribe, belonged to the tribe. इस कॉन्सेप्ट को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज आपको कोई अगर पूछे कि you belong from which, you belong to which place या फिर you belong from which family, mostly the answer will come and it will be related to a place. Yes or no? कि we belong to sir Gwalpara district या we belong to Bodoland area. Yes or no? ऐसा आता है. लेकिन पुराने जमाने में as the pastoralist community used to travel from one place to another, तो कोई एक specific location पे they could not pinpoint that they belong from such a location. Understood? तो इस समय क्या होता था? Their form of introduction used to include the name of their tribe, the name of their tribe, and this tribe was called as Jana. क्या बोलते थे? Jana. ठीक है? People's identity was attached to what? The tribe. Called as what? The Jana. ठीक है? Jana. It was also called as the Vis. Vis. ठीक है? इस Vis के अंदर there were several small groups called as Grama. Small groups called as Grama. और जब दो ग्रामा क्लैश करते थे तो उसको क्या बोलते थे? संग्रामा. जब दो ग्रामास क्लैश करते थे उनको क्या बोलते थे? संग्राम. समझ में आया? Have you heard this word संग्राम? उसका मतलब यही था कि जो दो ग्रामा है वो क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में. Clear? All right. Next important point is obviously there was a patriarchal family. Patriarchal family था, लेकिन women did have some form of agency. Despite it being a patriarchal family, women did have some sort of agency. They had some sort of what? Freedom. Freedom होता था. Alright. Along with that, widow remarriage was allowed. ठीक है? Widow remarriage was what? Allowed. As well as during that time there was no child marriage. Child marriage नहीं होता था. Widow remarriage was what? Allowed. Alright. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हम जो देखेंगे वो है द वैदिक गॉड्स. वैदिक गॉड्स. अब देखना गॉड्स का मतलब गॉड्स का फॉर्म सब चेंज हो जाता है फ्रॉम एज यू मूव फ्रॉम वैदिक टू लेटर वैदिक एंड सो ऑन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से क्वेश्चन बन सकता है. बी केयरफुल. ऋग वैदिक गॉड्स. सबसे पहले इट्स द इंद्र. कौन से भगवान है? Indra. And Indra is actually called the breaker of the forts. The breaker of the forts. थोड़ा लॉजिक लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा क्यों. इंद्र को रेन गॉड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रेन गॉड. अब आप लोग मुझे बताओ. No doubt IVC was very developed, but the Rig-Vedic period was very, what do you say? It was very undeveloped era, right? सेटल्ड लाइफ नहीं होता था. तो वहां पे क्या बनते थे? छोटे छोटे मड हट्स बनते थे. क्या बनते थे? मड हट्स. एंड मड के साथ एक प्रॉपर्टी है, चाहे आप कितना ही बड़ा बना लो, कितना ही स्ट्रॉन्ग बना लो, इफ देयर इज एक्सेसिव रेन तो क्या होगा? द मड हाउसेस विल वॉश अवे. इसीलिए रेन गॉड्स वर कॉल्ड एज व्हाट? द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स. द ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स. आया समझ में? द मड हट्स वर व्हाट? दे वर वॉश्ड अवे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज अग्नि. कोई डाउट ही नहीं है. अग्नि मतलब फायर गॉड. उस समय जब देयर वाज नो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो फायर वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी पावरफुल, वेरी पायस, और उसको क्या किया जाता था? वर्शिप किया जाता था. आज भी देयर इज अ सर्टेन कम्युनिटी व्हिच एक्चुअली वर्शिप्स फायर. बताए कौन? द पारसीज. द पारसीज दे कंसिडर फायर टू बी वेरी पायस. समझ में आया? ढीकरा, मारो ढीकरा सुना है? दैट कम्युनिटी जो हैट पहनते हैं मारो ढीकरा करते हैं, दैट इज द पारसीज, एंड दे एक्चुअली कंसिडर फायर टू बी वेरी पायस. द पारसीज फॉलो अ रिलीजन कॉल्ड एज व्हाट?
जोरास्ट्रियनिज्म. कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं वो लोग? जोरास्ट्रियनिज्म. एंड वेयर फायर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी पायस. क्लियर है? अग्नि के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गॉड इज वरुणा. कौन से? वरुणा. एंड वरुणा रिफर्स टू वॉट? वाटर. वाटर. वरुणा रिफर्स टू वाटर. नेक्स्ट आता है सोमा. नेक्स्ट आता है क्या? सोमा. दैट इज द गॉड ऑफ प्लांट्स. द गॉड ऑफ प्लांट्स. ठीक है? सोमा. As well as soma is actually what? An intoxicating drink. Yes or no? सोमरस जिसको बोलते हैं, nothing but alcohol. सोमरस. Okay. And then we have जो लोग down the line है, मरूत्स. उनका कौन सा गॉड था? मरूत्स. मरूत्स is nothing but storm god. STORM. Storm god. Maruts. Maruts, that is storm gods. Then after the Maruts or the storm gods, female goddesses like Aditi and Ushas. Female goddesses like Aditi and Ushas were also worshipped. Aditis and Ushas. Clear hai? And both of them represented dawn. D-O-N, dawn नहीं, D-A-W-N, dawn. Dawn मतलब क्या होता है? Just before sunrise. Yes or no? या sunset? Just before sunset. तो twilight नहीं होता क्या? जो just before sunrise क्या होता है? Dawn ही होता है. It is dawn only, right? Just before sunrise जो होता है. That is called as what? Dawn. आया समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग टाइप का बन सकता है. तो ये ऑलवेज रिमेंबर, ऋग्वेदिक गॉड्स वेर मोस्टली एसोसिएटेड विद नेचर. दे वर एसोसिएटेड विद नेचर. अग्नि, पानी, हवा. अंडरस्टूड? दे वर द फॉर्म ऑफ गॉड्स ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक टाइम्स. ऑलराइट. अब देखो, लेट्स टॉक अबाउट लेटर वैदिक. किसकी बात करेंगे? लेटर वैदिक.